Thank you very much, Julie. Thank you, Krutika, for coordinating today's seminar. I also thank, initially invite Mr. Daman Purohit, CA Daman Purohit, our co-singer in Julie's co-singer, rather I should say like that, at WRC CA Day celebration. This is CA celebration week is going on, rather we should say like that. And today all of us here must admit that this is the profession which gives us the recognition in the world with dignity. And Pinky, आपके नाम पे 60 लोग आ गए देखो, लास्ट मीटिंग से डबल. So Pinky is also her credentials. What I can say, she is my good friend. Friendship, and that's why I say it's so nice to have friends around. तो इसीलिए ये चाय पे चर्चा में मुझे जब भी कोई याद आता है तो सबसे पहले पिंकी याद आती है. यू रिमेंबर बीसीएससी वुमेन विंग भी मैंने स्टार्ट किया था ना, तभी द फर्स्ट स्पीकर आई कॉल्ड वाज सीमा एंड पिंकी इन रो. इट वाज लाइक दैट. So JB Nagar and Borivali is joined always hands together. We all people also know that JB Nagar is highest member strength, Borivali is also highest member strength, and there has to be a bonding, which is very important. Ultimately, we all together can. That Shruti's line I always write. We can, together we can. So ultimate aim is to be together. So Pinky, not taking much of time, so many participants are eagerly waiting. The first question what is coming in my mind is that, can you just throw a slide between that 194Q and 2061H? So what are the difference between both of them and how to understand them? Okay. For that, I have to take to you on my PPT. If you allow me to share my screen. In between I can continue with my talk. Yeah, say aloud. Can you see now? Yes, it's visible. Yes. खाली पीपी हाँ स्लाइड शो कर दें. Yes. So it's visible. So this is the disclaimer I want to give to you all. This is for only education purpose, and I prepared this PPT as per my understanding of law. So if you want to take any decision on any transaction, please refer act, rule, and decision of various court from time to time. And because every decision depends on a particular case to case basis. अभी मैंने आपको बोल दिया कि इस पे ये एप्लीकेबल होगा, आपने मुझे एक लाइन या 2 लाइनर में आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, बट इफ आई विल गो and I will give you the suggestion according to that only. But उस 2 लाइन के ट्रांजेक्शन के पीछे कितने ट्रांजेक्शन रहेंगे, उनके क्या कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे, I don't know about that. So you have to go through by that only. सिर्फ मेरे उस पे एडवाइस पे मत जाइएगा. उसके पीछे कितने ट्रांजेक्शन हैं, क्या उनके आपस में कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, क्या एग्रीमेंट हुए हैं, प्लीज सी दैट आल्सो बिफोर कम टू एनी कंक्लूजन. So I will say for 200, I will start with 194. Just a second. This is 194 now. Actually, my upper screen is. So this is basically one. There is 2 sections introduced by Finance Act. One is 100 TCS under section 206 C1H, and second was TDS under section 194Q. Okay, so 206 1H is applicable from 1st October 2020, whereas 194Q TDS is applicable from 1st July 2021. So basically 194Q is TDS on purchase of goods and 206C 1H is TCS on sale of goods. So I made the table to draw the difference between both the section.
in 194Q, buyer is liable to deduct TDS, but in section 206C1H, seller is liable to collect the tax. Turnover limit is 10 crore in both the cases, but in case of 194Q, you have to check the turnover limit of buyer. And in case of 206C1H, you have to check the turnover limit of seller. Pinky, unmute yourself. I have muted everyone. Okay. So in both the cases, turnover limit is 10 crore of previous year. Okay, immediately preceding previous year. But in case of 194Q, it is you have to check for buyer, and in case of 206C1H TCS, you have to check the turnover limit of seller. Threshold limit is 50 lakhs for in both the section. Rate is also same in both the section, 0.1%. And if PAN or Aadhaar is not furnished, then rates it will be in case of 194Q it is 5%, and in case of 206C1H it will be 1% only. So there is a difference of rate, and after that amount on which tax to be deducted, it is also same on the amount of in case of 194Q, on the amount of purchase in case of 50 lakhs is excess of, and in case of 206C1H on the amount of sale consideration in excess of 50 lakhs. In both the cases, in excess of 50 lakhs, you have to deduct tax, TDS or TCS. And what the time of collection or deduction? In case of 194Q, at the time of payment or credit, whichever is earlier. Means यदि हमने इसने बायर ने कोई परचेज के पहले एडवांस पेमेंट किया है, एडवांस पेमेंट पे भी 194Q एप्लीकेबल हो जाता है फ्रॉम 1 जुलाई 2021. ओके, तो बट इन केस ऑफ TCS एट द टाइम ऑफ रिसीट, तो बहुत अभी जो चल रहा है प्रोसेस, जो लोग फॉलो कर रहे हैं कि बिल में ही TCS लगा के दे रहे हैं, दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस, बिकॉज TCS इज एप्लीकेबल एट द टाइम ऑफ रिसीट. उस समय आपकी जब रिसीट आई ही नहीं है, आप बिल पे TCS कैसे लगा के दे सकते हो? तो सबको है कि बाद में हम TCS कैसे लेंगे. यू कैन इश्यू डेबिट नोट ऑन दैट, बट यू कांट चार्ज TCS ऑन बिल. आपका क्योंकि उस समय कितना रिसीट आएगा आपको पता नहीं है, आप कैसे उस पे लगा के दे सकते हो. और दूसरी क्या प्रॉब्लम होगी, जो सेलर है उसकी लायबिलिटी जैसे ही उसने TCS लगाया बिल में, उसकी लायबिलिटी उसी समय अराइज हो जाएगी TCS भरने की. सो इफ ही हैड इश्यूड बिल इन मंथ ऑफ अप्रैल विथ TCS, उसको 7 मई के बीच में भरना पड़ेगा TCS, चाहे वो बायर ने उसको पैसे दिए हो चाहे नहीं दिए हो, तो उसको अपनी पॉकेट से TCS भरना पड़ेगा. मतलब उसके पास में सेल के भी पैसे नहीं आए होंगे तो भी उसको भरना पड़ेगा. So it is advisable that ultimately TCS is the later on, once you realize the money, and then it is, if applicable, you should collect through a separate debit note. In section itself it is written that liability to deduct TDS is first of 194Q. तो यदि कोई भी ट्रांजैक्शन में दोनों सेक्शन एप्लीकेबल होते हैं तो 194Q में पहले लायबिलिटी आती है. यदि 194Q में उसकी बायर की लायबिलिटी नहीं आ रही है कोई भी रीजन से, जो भी उसमें दिए हुए आगे हम डिस्कस करेंगे, तो यदि 194Q में TDS वो नहीं काटता है, देन इट्स लायबिलिटी ऑफ सेलर टू डिडक्ट TDS if he has fulfilled all the criteria for that. So first preference always be for 194Q. तो अभी जो क्लेरिफिकेशन भी आया है सर्कुलर नंबर 13 में 30 जून को, उसमें थोड़ा सा उन लोगों ने फिर से कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ है. वो हम फिर अभी जब आगे यदि आपके क्वेश्चन यदि वैसे आए तो मैं वैसे बता दूंगी, अदरवाइज मैं अपनी तरफ से बता दूंगी आपको कि उन लोगों ने फिर से एक वन लाइनर ऐसा डाल दिया है ना कि फिर लोगों को कंफ्यूज कर दिया है कि यदि TCS कटा है तो फिर TDS लगना है कि नहीं लगना है. So in and all, what you have tried right now in this chart, where what is 194Q basic is from the buyer's point of view, okay, and 206(1)(h) we have to always see from the seller's point of view, right? That's what one thing is settled. Threshold is settled 50 lakhs. Now always the questions comes that the way you already explained, advance will be considered as far as buyer is concerned. But seller has to consider how.
मतलब व्हेन ही सेल एक्सीड्स 50 lakhs, और सेलर को भी हम कभी एडवांस में पेमेंट देते हैं, बट टिल द टाइम ही रेजेस द बिल इट विल नॉट बी कवर्ड काउंटेड. हाउ एक्चुअली इट विल वर्क? So So basically can वही you, है if कि you give us some example, like 30 lakhs या 40 lakhs ऐड करके ऐसा Okay. कुछ बताएंगे तो. ओके, अभी मैं आज के बाद ठीक है आपको एक टेबल बताती हूँ. उस टेबल से आपको बहुत कुछ क्लियर हो जाएगा. ये मेरी एक स्लाइड छूट गई थी कि दोनों में डिफरेंस की. एक स्लाइड और थी कि 194Q is applicable from 1st July Yes, this is 2021 important. Yes. and 206C is applicable from 1st October 2020. Due date is same and return TDS return is different. In case of 194Q, you have to file TDS return from in form 26Q, but in case of TCS, form number is 27E. TDS certificate is also different. In case of 194Q, it is form number 16A, and in case of TCS, it's a form number 27D. And consequences of default, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो सबको इसी के लिए हिट कर रहा है कि 194Q लेना है कि नहीं लेना है. बिकॉज देयर इज अ डिसअलाउंस टू द एक्सटेंट ऑफ 30% अंडर सेक्शन 40A1. तो इसके लिए सबको ये हो कि यदि हमने सामने वाले ने टीसीएस काटा है और हमने उस बेसिस पे हमने टीडीएस नहीं काटा, वेदर माई एक्सपेंसेस विल बी डिसअलाउड द ट्यून ऑफ 30%. तो इसके लिए हम पहले ये देखते हैं कि कब टीसीएस की लायबिलिटी आती है और किस केस में टीडीएस की लायबिलिटी आती है. ओके, सो ये 2021 का सिनेरियो है. पहले मैं वो एक दिखा देती हूँ आपको कि एट दैट टाइम 194Q वाज नॉट देयर. Okay, only 206C1H was there. So how you have calculate at that time? अभी इसलिए ये थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर दे रही हूँ क्योंकि अभी हमें 2020-21 की ऑडिट करनी है. ओके, तो ऑडिट में हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना पड़ेगा कि वेदर दे हैड डिडक्टेड दे हैड कलेक्टेड टीसीएस अंडर सेक्शन 206C1H or not. So इसी for revision purpose I am taking this slide for 2020-21 because see so if the seller बेसिक क्राइटेरिया क्या है 206C1H की, पिछले साल का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर होना चाहिए सेलर का, एंड करेंट ईयर में उसकी जो भी रिसीट है या जो भी रिसीट है एडवांस है या सेल के अगेंस्ट में है वो 50 लाख से ऊपर होनी चाहिए. तो 50 लाख से एक्सेस जितना अमाउंट रहेगा उस पे टीसीएस वो होगा. अभी हम देखते हैं कि सेलर का टर्नओवर 1920 में 12 ये मैंने टर्नओवर की डेट दी है. फर्स्ट वाला सिनेरियो लेके चलते हैं. हमें बायर के टर्नओवर से कोई मतलब नहीं है बिकॉज एट दैट टाइम 206C1H वाज एप्लीकेबल. सो इन दिस केस 12 करोड़ की टर्नओवर है. ओके, तो 12 करोड़ की टर्नओवर इसका मतलब 10 करोड़ से ऊपर हो गया, उसको एप्लीकेबल हो गया, एंड ही सोल्ड द गुड्स फॉर 70 lakhs. ओके, बट सेल ऑफ गुड हमें देखना ही नहीं है. व्हाट वी हैव टू सी, वी हैव टू सी रिसीट. ओके, तो रिसीट क्योंकि रिसीट 50 लाख से ऊपर हुई देन he has to collect TCS. So in this case, in first scenario, receipt for sale or advances up to 30th September was 55 lakhs, and after 30th September he received 45 lakhs. So how much he has to on what amount he has to collect TCS? He has to collect TCS on 45 lakhs only, because threshold limit we have to take full from 1st April. But हमको जब टीडीएस हम टीसीएस जब कलेक्ट करेंगे तो 30 सितंबर के पहले हमने जितना भी कलेक्ट किया है हमको उसको कंसीडरेशन टीसीएस के लिए कंसीडर नहीं करना है. 30 सितंबर के बाद हमने जितना अमाउंट रिसीव किया है सेलर ने उस पे ही टीसीएस लगेगा. ठीक है, 30 सितंबर के बाद इसने 45 लाख उसने रिसीव किया तो 45 लाख के ऊपर टीसीएस लगेगा, एंड पैन ऑफ बायर भी रहेगा तो 0.075%. अभी ये 0.075% क्यों है, थोड़ा सा लोगों के मन में तुरंत डाउट आएगा, बिकॉज इट शुड बी 0.1%. बट इफ यू रिमेम्बर इन कोविड देयर वाज अ रिलीफ फॉर 25% इन रेट. फॉर दैट पर्पज मैंने ये रेट लिखा है कि बाई चांस आपने ये स्लाइड अपने स्टाफ को या किसी को आर्टिकल को दे दी तो वो फिर बोलेगा कि टीडीएस डिडक्ट नहीं हुआ बराबर से. And I think this is the right time what you are explaining. We will be now taking the audit assignment also. So these becomes so clear to the participants will agree that this chart is giving us an insight. While doing the audit, we have to consider this point, and we will be reporting in our tax audit report. Okay, timely deduction, proper deductions have been taken care or not.
So this is the basically I have prepared whatever condition situation can be arise. Maybe you can find different situations, but मुझे जितना ध्यान में आया मैंने उतनी सिचुएशन इसमें पॉइंट आउट करने की कोशिश की है. तो बेसिकली अभी इन द सेकेंड केस सेल 30 सितंबर के पहले उसकी रिसीट कुछ भी नहीं थी, बट आफ्टर 30 सितंबर उसकी 45 लाख की रिसीट थी, बट 50 लाख का हमारा थ्रेशोल्ड पूरा नहीं हो रहा है, तो नो टीसीएस. ओके. इन थर्ड सिनेरियो जो भी इसने रिसीव किया 30 सितंबर के पहले रिसीव किया, आफ्टर 30 सितंबर ही हैज नॉट रिसीव्ड एनीथिंग, नो टीसीएस. इन फोर्थ सिनेरियो before 30 September he has not received anything, but after 30 September he received 75 lakhs. So we have to exclude 50 lakhs of threshold limit. So on 25 lakhs he has to collect TCS. Like this also. Yeah, in fourth and fifth, what is the difference? Can you tell me in fourth and fifth what is the difference? Why rate is different? All other thing is similar. Why rate is different? Because in fourth number serial, PAN of buyer is there, so rate will be 0.075%. And in fifth serial number, PAN number is not there. PAN of buyer is not available. Okay, so rate will be 1%, but because of COVID, it is 0.75%. Okay. And गुगली डालते रहने का, गुगली डालते रहने का. वही देख रही थी गुगली देख के कि कोई वो चाय पीते पीते सो तो नहीं गए. And on 6 number serial, he has received 40 lakhs before 30 September and 70 lakhs after 30 September. So 40 lakhs तो हो गया, but हमें 50 का थ्रेशोल्ड पूरा करना है, तो we have to deduct 10 lakhs again from 70, and on 60 lakhs rate will be TCS will be collected. And in last one, sale of good is 45 lakh only, but we can't say कि सेल कम थी 45 लाख ही थी तो टीसीएस नहीं कलेक्ट किया. नो, उसने हो सकता है पिछले कोई सेल के भी उसके पैसे आने बाकी थे, डेटर्स पड़ा था, इसके लिए उसको रिसीव हुए. देन ऑल्सो ही हैज टू कलेक्ट टीसीएस. ये 7 नंबर आपको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत केसेस में ऐसा होता है पिछले डेटर्स पड़े हैं उसके पैसे आ रहे हैं. अभी वो बोलेगा जब पिछले डेटर्स के मेरे उस समय टीसीएस था ही नहीं, तो मैं वाई शुड आई कलेक्ट टीसीएस. जो पेमेंट करने वाला है वो भी बोलेगा मेरा टीसीएस आप क्यों काट रहे हो, क्योंकि मेरा तो ये ट्रांजेक्शन 30 सितंबर के पहले का है या पिछले साल का है, 2018 का भी हो सकता है, 2019 का भी हो सकता है सेल ट्रांजेक्शन. बट इफ पेमेंट इज रिसीव्ड इन दिस ईयर ओनली, देन TCS will be applicable even there is no sale. यदि यहाँ पर सेल ऑफ गुड जीरो भी होता, देन ऑल्सो उसको 0.45 लाख के ऊपर में TCS कलेक्ट करना पड़ता. ठीक है. अभी हम आते हैं. Okay. So during the year, see, in your example, your sale is 0.45 and the same amount is received, right? After the 30th September. Had it been your sale will 0.25 and still we received threshold से ज़्यादा, then it would have been attracted. That's what you are trying to say. Yes, Anything, yes. whether it is sold in the previous year also, but if Yes. it is coming after 1st October 20 in your books of accounts, and during the year का जो basic 50 lakhs से ज़्यादा receipt हो रहा है, so that Yes. portion will be covered. Yes. That's what is it is highlighting. So now Yes. we'll go on to the next question. I think this wrap-ups, yeah, still No. have something to show. No. Now the basic question is there. Still, okay. This table is very much complicated, and you have to understand this. This is basically when 194Q is applicable and when 206C1H is applicable. ठीक है. So basically we have to check whether seller's turnover is exceed the limit or buyer turnover is exceed the limit. Okay. In first table, in first serial number, seller turnover and buyer turnover दोनों का turnover 10 करोड़ से नीचे है लास्ट ईयर का. ठीक है. So in that case, even if sale is more than 50 lakhs or receipt is also more than 50 lakhs, then also 194Q और 206C is not applicable, because उसकी दोनों की टर्नओवर पिछले साल 10 करोड़ थी ही नहीं. मैटर वही खत्म हो गया. ठीक है. नाउ इन सेकेंड एग्जाम्पल, सेलर की टर्नओवर 9 करोड़ है, बट बायर की टर्नओवर इज 12 करोड़.
Okay, so to whom this section will be applicable? सेलर की टर्नओवर 9 करोड़ ही है, so 206C1H will not be applicable. Only 194Q will be applicable because buyer turnover is more than 10 crore. Correct? So now we will go that कि हाँ इस केस में सेकेंड एग्जांपल में हमारा ये लायबिलिटी आती है. अब हम कैसे देखेंगे? यदि हमारा बिकॉज 194Q इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 जुलाई, तो हम पहले ये देखेंगे कि 30 जून से पहले हमारी कितनी सेल हुई थी, कि हमारी रिसीट सेलर को रिसीट कितनी हुई थी, उस बेसिस पे इसमें डिसाइड कर सकते हैं. अभी जैसे इसमें से गुड्स जो सेल ऑफ गुड्स हुआ था वो अप टू 30 जून ओनली 40 lakhs था. आफ्टर 30 जून इट इज 50 lakhs, but receipt of sale is for 54 lakhs before 30th June. Okay, and after 30 June it is 0. So in that case what we will be applicable, because seller का 194C तो applicable होना ही नहीं है, 206C सेलर की टर्नओवर नहीं है. जो भी 30 जून के पहले जो भी रिसीट हुई है उसके ऊपर में टीसीएस लगने वाला ही नहीं है. हमको 30 जून के पहले 30 जून के पहले वाले कोई ट्रांजेक्शन से दिमाग ही नहीं लगाना है. वी विल कम टू transaction after 30 June. Transaction after 30 June is only sale of good of 50 lakhs. Okay, but in this case आपने को फिर 50 lakh का वो threshold limit देखना है, because 40 lakhs and 50 lakhs 90 lakhs का सेल हो चुका है, but 50 lakhs की threshold खत्म होती है, माइनस करेंगे तो 40 lakhs के ऊपर में 194Q TDS काटना पड़ेगा बायर को. नहीं समझा? नहीं समझा तो मुझे एक बार चैट बॉक्स में बताओ ना. See, क्यों नहीं समझा? The reason is that what we are trying to understand is that कि threshold of 50 lakhs के ऊपर मुझे TDS काटना है. तो अगर मेरा 40 लाख का सेल हुआ था, एग्जाम्पल पे ही रहते हैं, आपने जो बताया ना 40 लाख का सेल 30 जून तक हो गया. सेल ऑफ गुड्स जो हुआ है वो आफ्टरवर्ड्स 50 लाख का हुआ है, और आपकी ऑलरेडी रिसीट आ चुकी थी 54 लाख की. तो वो 54 लाख मतलब थ्रेशोल्ड क्रॉस हो गया, उतना मालूम पड़ गया, एंड 54 इज आउट ऑफ द परव्यू, क्योंकि मेरा डिडक्शन तो 1 जुलाई के बाद जो रिसीट आएगी उस पे चालू होगा. करेक्ट? सो सपोज इसमें रिसीट के ऊपर नहीं लगेगा ना वरना, इसमें रिसीट के ऊपर नहीं लगेगा. हम अभी फ्रॉम दी हुज पॉइंट ऑफ व्यू आर आई एम कंफ्यूज्ड. नहीं, क्योंकि सेलर सीधा सा आप ये समझो, यदि सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ नहीं है 2021 में, सेलर का नहीं है इसीलिए बायर टीडीएस काटेगा. करेक्ट? दैट इज वेरी क्लियर. तो वो सेलर की लायबिलिटी खत्म. यदि उसके 10 करोड़ है ही नहीं तो उसको एप्लीकेबल ही नहीं है ना टीसीएस. हाँ, टीसीएस, मैं टीसीएस की बात ही नहीं कर रही हूँ, मैं टीडीएस 194 जब टीडीएस 194Q टीडीएस की आप बात करते हो, इन दैट केस आपको रिसीट नहीं देखना है, आपको सेल देखना है. ओके, तो सेल तो मेरा आफ्टरवर्ड्स 50 हुआ है. हाँ, बट आपका थ्रेशोल्ड लिमिट 50 का पूरा नहीं हुआ ना, तो 10 माइनस करके. ओके, नाउ आई गॉट इट. ओके ओके, अंडरस्टूड. अरे इतना एकदम कंफ्यूजिंग क्यों क्वेश्चन बनाती है? थोड़ा बड़ा अमाउंट रखते तो इमीडिएट समझ में भी आता था ना. इसीलिए तो बोल रही हूँ कि थोड़ा सा चाय पीते पीते माइंड को ट्विस्ट करो. नहीं, अभी समझा, क्योंकि वो आई हैव टू सी दैट सेल हैज हैपेंड व्हिच इज 50 lakhs एंड 40 lakhs पहले वाला था, तो टोटल 90 हुआ. 90 में से 50 निकल जाएगा, तो 40 लाख के ऊपर टीडीएस काटना है. उसको रिसीट से कुछ लेना देना नहीं है. बराबर? नहीं, कुछ लेना देना नहीं उसको रिसीट. आया समझ में ये? ठीक है. जिसको नहीं समझ में आया चैट बॉक्स में आप लिख देना, मैं चीज क्लियर कर दूंगी. अच्छा, अभी थर्ड नंबर एग्जांपल में चलते हैं, क्योंकि इस पे थोड़ा सा बनना अपने को टाइम देना पड़ेगा. अच्छा, रश्मि बोल रही है, रश्मि का क्वेश्चन ये था कि बायर विल नॉट टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल इनवॉइस. उनका है ये है कि रिसीट के हिसाब से, तो थोड़ा और कंफ्यूजन आ रहा है वहाँ पे. वहाँ पे आपने क्या बोला कि हमारा सेल इनवॉइस 50 lakhs का है लेटर ऑन, और भले 54 आपने ऑलरेडी रिसीव कर चुका था 30 जून के पहले. सेलर ने रिसीव किया था वो, तो मेरे को 54 तो देखना ही नहीं है ना. ओके, जब बायर समझा अभी समझा. अरे बात समझ गई कि आई एम नाउ इन द शूज ऑफ बायर. तो when you are in the shoes of buyer you have to see sale, and when you are in the shoes of seller you have to see receipt. करेक्ट. ये ना ये रट्टा मार के किधर लिख लेते हैं. सेलर मतलब रिसीट देखना है, बायर मींस परचेस मतलब टोटल कितना आया मेरे को. Yes.
So in this table we will take some time, ठीक है? अदरवाइज क्या होगा कि पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा जब तक ये टेबल नहीं समझ में आएगा किसी को, ठीक है? इसी में मेरे सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे मुझे लगते हैं। एक्चुअली मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि हाउ टू कैलकुलेट एन असर्टेन टीडीएस टीसीएस लायबिलिटी इन वन ट्रांजैक्शन एंड हाउ टू कैलकुलेट थ्रेशोल्ड फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22, यू नो। हाँ, तो वो इसमें आ जाएगा, तुम्हारा सारा इसमें कैलकुलेट कवर हो जाएगा इस पूरे टेबल में ही। तो ये सेकंड हो गया एग्जांपल, नाउ वी कैन कम टू थर्ड एग्जांपल। ओके, इन थर्ड एग्जांपल सेलर का टर्नओवर 10 करोड़ से ऊपर गया, ओके, एंड बायर टर्नओवर इज लेस देन 10 करोड़। So what we have to see, चैट बॉक्स में फटाफट डालिए जो देख रहे हैं ना, तो मुझे भी समझ आएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है कि नहीं। कि थर्ड एग्जांपल व्हाट वी हैव टू सी, सो बायर है ना, उसको वरना तो मत बोल, वरना तो मत बोल। टीडीएस नॉट हैपनिंग। 206 ही नहीं बोलने को चाहिए, वो तो मैंने भी लिख के दिया है। बाय मेरे को सेल देखनी है कि रिसीट देखनी है? यस, करेक्ट, वी हैव टू सी रिसीट बिकॉज, करेक्ट, सबके आंसर सही आ रहे हैं। तो लग रहा है मुझे थोड़ा सा समझाने में समझाने में थोड़ी तो काबिलियत मिल गई है तेरे को। So in third, seller point of view से we have to see because buyer turnover is less than 10 करोड़, तो हम लोग ये रिसीट का कॉलम देखेंगे। in receipt it is 57 lakh he has received before 30 June, तो 50 lakhs इसमें से माइनस करना है, and on 7 lakh 206C1H TCS will be applicable. Okay, now we'll come to 4. अभी 4 के लिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान से एक बार देखो, समझने की कोशिश करो 1 सेकेंड के लिए, एंड कोई एक्सप्लेन कर सकता है तो अपना एक बार अनम्यूट करके एक्सप्लेन करने, या मेरे को चैट में लिख के बताओ कि ये क्यों ऐसा है, क्योंकि दोनों को एप्लीकेबल है ये, उसमें दोनों को एप्लीकेबल हो रहा है, दोनों की टर्नओवर 10 लाख से ऊपर है, जो मोस्ट ऑफ द केसेस में होगी, और इसी में ही लोगों को कंफ्यूजन है। 194 क्यों कभी आएगा और 206C1H क्यों आएगा, और इसी में ये नए सर्कुलर ने आके एक और नया कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया है। ओके, ठीक है, अब आप लोगों ने पढ़ लिया इसको। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि मैंने एक जगह 40 lakhs लिखा है 194 क्यू में, और एक जगह मैंने 30 lakhs लिखा है 194 क्यू में। तो मैंने ये दो आंसर क्यों लिखे हैं वो मैं अभी आप लोगों को क्लियर करती हूँ। ठीक, in this case both the seller has more than 10 crores turnover and buyer is also have more than। पिंकी अनम्यूट योरसेल्फ, क्योंकि आवाज आ रही थी। Okay, so in this case now see, अब अपने को पहले देखना है कि 30 जून के पहले 30 जून के पहले किसकी लायबिलिटी आएगी, सेलर की, क्योंकि 30 जून के पहले बायर की लायबिलिटी नहीं थी, 194 क्यों था ही नहीं। ओके, इन दिस केस सेलर हैज रिसीव्ड द अमाउंट ऑफ रुपीज 60 lakh बिफोर 30 जून। ओके, तो सेलर लायबिलिटी इज देयर एंड 50 lakhs माइनस होके 10 lakhs पे वो टीसीएस कलेक्ट करेगा। तो ये चीज सबको क्लियर हो गई कि 10 lakhs 206C1H में सेलर को कलेक्ट करना है। अब नया ट्विस्ट जो आ रहा है वो आ रहा है 30 जून के बाद, जब दोनों सेक्शन आ जा रहे हैं और दोनों को एप्लीकेबल है। ओके, अब इस केस में क्या होता है, जब हम पहले के हिसाब से चल रहे थे, हमारा जो थंब रूल जो चल रहा था, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो तीनों एग्जाम्पल में हमने देखा, दिस एग्जाम्पल वी कैन से कि चलो ठीक है, अभी हमने 30 जून तक हमने रिसीट देखा, 30 जून के बाद हमें सेल देखना है। ओके, तो 30 जून के बाद की सेल हम पीछे के सेकंड नंबर और थर्ड नंबर एग्जाम्पल के हिसाब से मेरा 40 lakhs रुपीज आता है 194 क्यू का, करेक्ट, क्योंकि 40 lakhs 30 जून के पहले था। 50 lakhs देखो मैंने ऊपर में सेकंड नंबर में भी वैसे ही किया था ना, 40 lakhs अपना 194 क्यू में आया। थ्रेशोल्ड बनाने के लिए 10 लाख 50 में से निकल जाएंगे, तो हाँ। 40 और 10 50 हुआ और 40 बच गया। ये हमने पहले, मेरा जो आंसर था ये सर्कुलर नंबर 13 के पहले जो मैंने ये टेबल बनाया था ना, मैंने सिर्फ ये दो आंसर ही लिखे हुए थे। ओके, बट व्हेन द सर्कुलर नंबर 13 केम, उसमें उसने क्या लिखा है, आप लोग बोलोगे तो मैं एक बार पढ़ती हूँ उस लाइन को। यस, यू मस्ट रीड फॉर अस द सर्कुलर। या उसमें क्या लिखा हुआ है, हाउएवर इफ फॉर एनी रीजन टैक्स हैज बीन कलेक्टेड बाय द सेलर
under subsection 1H of section 206C of the Act, before the buyer could deduct tax under section 194Q of the Act on the same transaction, such transaction would not be subjected to TDS again by the buyer. The concession is provided to remove difficulty, but इसने difficulty और बढ़ा दिए. Since tax rate of deduction and collection are same in section 194Q and subsection 1H of section 206C of the Act. ठीक है, तो इसमें वो बोलता है कि यदि ऑलरेडी टीसीएस काटा हुआ है एनी रीजन से सेम ट्रांजेक्शन के ऊपर, तो उस पर आपको टीडीएस नहीं काटना है. अभी मैं इसमें एक कंजर्वेटिव व्यू लेके चलती हूँ कि 31 मार्च को कुछ भी डेटर्स पेंडिंग नहीं था. ओके, और इसने जो भी एडवांसेस रिसीव किए हैं वो करंट मंथ के लिए, करंट ईयर की सेल के लिए ही किए. जो भी इसकी रिसीट है वो एडवांस है या फिर करंट ईयर की सेल है. ओके, एक ये कंजर्वेटिव व्यू लेके हम चले ना इसमें कि हमने पिछले साल का, इसमें जो भी इसने 60 लाख रिसीव किया 30 जून तक, वो पिछले साल का कुछ भी पेमेंट नहीं था. वो जो भी था करंट ईयर का ही था. हम 1 अप्रैल से ही जो सेल थी उसी का ही था या एडवांस है. तो यदि हम उस व्यू से चलते हैं 40 lakhs rupees. Can I ask everyone to mute yourself? Now you unmute yourself. तो अभी इसमें क्या हुआ है कि 30 जून तक 40 lakhs की सेल थी और रिसीव कितना किया उसने 30 जून तक 60 lakhs. हम मान के चलते हैं कि जो 20 lakhs उसने जो रिसीव किया वो बाद के सेल के लिए एडवांस में रिसीव कर लिया 30 जून के पहले ही. करेक्ट? गॉट माय पॉइंट? तो इस 50 में से ऑलरेडी 50 lakhs का जो सेल आफ्टर 30 जून हुआ, उसमें से ऑलरेडी उसने 20 लाख एडवांस पेमेंट किया हुआ है और उस पे 10 लाख पे उसने ऑलरेडी टीडीएस कटा हुआ है, टीसीएस कलेक्ट किया हुआ है उसने. अंडरस्टैंड. सो बैलेंस जो 30 बचेगा उसी पे मुझे 194Q में काटने का रहेगा, प्रिज्यूमिंग दैट नथिंग बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर. हाँ, पिछले साल का कुछ भी नहीं था, पिछले साल का कुछ भी पेंडिंग नहीं था और उस पे टीसीएस ऑलरेडी कटा हुआ था एडवांस पेमेंट के ऊपर पे, तो इसके लिए उस पे फिर टीडीएस नहीं काटना है. नहीं, बट इन द फर्स्ट स्लाइड सी 1920 का जब भी हम देख रहे थे, आपने हमें क्या बताया कि इफ द मनी रिसीव्ड इन द करंट ईयर दो इट बिलोंग्स टू द प्रीवियस ईयर बट इट एक्सीड्स 50 lakhs एंड इट इज रिसीव्ड आफ्टर 1 जुलाई, सो द नहीं, पिछली स्लाइड मेरी 2020-21 की थी. At that time it was applicable from 1st October and at that time 194Q was not there. So it is out of question, बराबर? Yes. So पर उस साल का पैसा इस साल में तो आ ही सकता है ना? मैं वही बता रही हूँ ना कि यदि उस साल का पैसा इस साल में आया होगा 1 जुलाई के बाद, आई एम अगेन रिपीटिंग, 1 जुलाई के बाद आया. यदि, लेकिन मेरे इस एग्जांपल में नहीं आया 1 जुलाई के बाद. नहीं, आई एम जस्ट गिविंग अ सिनेरियो. वो आगे आएगा, वो बाद वाले में आता. अभी हम 30 जून तक ही चल रहे हैं. ओके, सो अभी किसी को नहीं समझ में आया. I was about to ask the participant, are you clear with this? Because ये चाय पे चर्चा मैं moderate कर रही हूँ, लेकिन participants are free to ask the question, unmute themselves and mute immediately after the question. Vandana ma'am, I have a query. Rather than, can I just go ahead with the query? Yes, sure. Yeah, ma'am, rather than doing this both the section, can we do take a representation letter from the buyer or either for the seller? In that, I'm talking about the case where both the parties' turnovers are exceeding 10 CR. So, because what I'm finding is like there is a tax deducted and collected both. So, why? And the section itself says that there will be overriding if the 2061H is overriding over 194Q, then 194Q is prevails. So, ma'am, can we take a representation letter from the buyer or seller, either case, and deduct only one TDS either in 94Q or on the 2061H? See, Act is very clear. We made it complicated because 206C1H, what TCS is saying that they have to charge TCS on receipt.
You got my point? And TDS is at the time of purchase of good. तो अभी सपोज वंदना ने मुझे 1 लाख का अमाउंट 1 लाख की कोई चीज सेल करी, मैं एक छोटा अमाउंट ले रही हूँ फॉर द सिंपल, फॉर मेक इट सिंपल। अभी उस वंदना ने मुझे कुछ 1 लाख का कुछ सेल किया, उसको उस समय उस पर टीसीएस नहीं लगा के देना है, वो मुझे 1 लाख प्लस जीएसटी का बिल देगी। एंड व्हेन आई विल पे, आई विल डिडक्ट टीडीएस 1%, उस 1 लाख 0.1%, तो मैं उस 1 लाख के ऊपर में 0.1% टीडीएस डिडक्ट करके वंदना को जब पेमेंट करूंगी, वंदना विल कम टू नो कि मैंने 194 क्यू का टीडीएस काटा है उसका। और जब उसको समझ में आ जाएगा कि 194 क्यू का टीडीएस कट गया है, उसकी लायबिलिटी वहीं खत्म हो जाती है टीसीएस कलेक्ट करने की। मैम माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, आई टेल यू कि एक बार थ्रेशोल्ड दोनों का अगर एक्सीड हो रहा है, अगर मैंने एक बार सी फर्स्ट लायबिलिटी व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग कि बायर का स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि द टीडीएस एप्लीकेबिलिटी ऑन द बिलिंग नॉट ऑन द कलेक्शन। ओके, तो अगर मेरे बायर इज डिडक्टिंग द टीडीएस, जब भी मुझे पेमेंट उसकी आएगी मैम, तो ऑलरेडी मेरा टीडीएस उसके ऊपर कटा हुआ है, तो हाउ मेनी टाइम आई विल गो एंड चेक एंड रिड्यूस माय अमाउंट फॉर डिडक्टिंग द टीसीएस मैम, because then it will be a double taxation. What I am feeling, it is like that once मेरा एक बार बिलिंग हो गया मैम 50 lakhs का, तो then I am as a buyer I have to deduct the TDS, right? Now seller को अगर जब भी पेमेंट मिल रही है ओवर 50 लाख, उसमें से मैंने ऑलरेडी 50 लाख के ऊपर तो मैडम टीडीएस काट दिया है, तो why again to deduct the TCS again when I am receiving, and it not be on the same year मैम। अगर आज मैंने बिलिंग किया समझो पूरे साल में 1 करोड़ रुपए का, मैंने टीडीएस काट लिया 0.01% के हिसाब से 194 क्यू में, नेक्स्ट ईयर में अगर मुझे उसकी पेमेंट आ रही है, ये ईयर में 50 लाख की रिसिट आई, नेक्स्ट ईयर में सेलर को 50 लाख की रिसिट आई, तो वो वापस से टीसीएस क्यों काटेगा जबकि मैंने 194 क्यू में टीडीएस ऑलरेडी काट दिया है? नो, इट इज क्लियर इन द सेक्शन, इफ 194 क्यू में टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है, देन देयर इज नो लायबिलिटी ऑफ 206C1H। यस मैम, सो आपके एग्जांपल में व्हाट आई एम गेटिंग कंफ्यूज हियर कि आपने दोनों एप्लीकेबिलिटी दिखाई है मैडम आपके एग्जांपल में, सो हाउ दैट इज पॉसिबल? एक बार मेरा 194 क्यू अगर हो गया है तो देन 2061H तो वहां पे आएगा ही नहीं मैम। पिंकी एक सेकंड इंटरप्ट करूं, उसको बोल 30 जून के पहले वाला है ये 2061H, जितना मैं समझी थी। हाँ, ये जो 206C1H है मेरा 30 जून के पहले है। 194 क्यू के बाद में हमने कभी भी, देखो मेरे पूरे एग्जांपल में 194 क्यू के बाद 206 आया ही नहीं है। ओके मैम, ओके फाइन, ओके, जहां भी आया देखो 206C पहले आया, उसके बाद 194 क्यू आया है। या मैम, आई एम क्लियर नाउ, प्रीटी क्लियर, थैंक यू। यस, ओके, तो आई अप्रिशिएट दिस कि इससे बहुत लोगों के कंफ्यूजन क्लियर होंगे, डिस्कशन से ही क्लियर होते हैं, कई सारे कंफ्यूजन हो सकता है, माइंड कंफ्यूजन आल्सो विल बी क्लियर बिकॉज ऑफ दैट। तो ये हो गया फोर्थ हमारा एग्जांपल कि बिकॉज ऑफ दैट सर्कुलर कि उस पे यदि 206C1H पहले से कटा हुआ है, देन वी नो नीड टू डिडक्ट अगेन टीडीएस ऑन दैट, तो 10 lakhs हमारा माइनस होके 30 lakhs पे 194 क्यू आएगा, करेक्ट। फिफ्थ नंबर एग्जांपल में फिर अगेन both the seller and buyer turnover is not there, even if sale is more than threshold limit, receipt is more than threshold limit, there is no change, no liability, TDS is not there, will not be there. In 6 number example, buyer liability is there, okay, seller turnover is below the 10 crores, but before 30 June his receipt is only 30 lakhs, okay, and after 30 June his receipt is 25 lakhs, but here seller is not liable to collect TCS because his turnover is less than 10 crores. So buyer की liability आएगी, we no need to see the transaction before 30 June, okay, हम 30 June के बाद का देखेंगे, and in case of buyer we have to see sale not receipt. सेल में अगेन 90 lakhs का ही हो रहा है, ठीक है, तो हम वो 90 lakhs के ऊपर 40 lakhs का हमारा TDS हो गया। In 7 number, seller turnover is more than 10 crores, buyer turnover is less than 10 crores. So here we have to see receipt basis, not on sale. Sale हमको देखना ही नहीं है because buyer turnover is less than 8 crores. Okay, so in this case
what he has received in before 30 June, 40 lakhs. After 30 June, he had received 17 lakhs. So minus 40 and 17, 57 lakhs receipt he has received, less 50 lakhs threshold. So on 7 lakhs, TCS to be respected. In serial number, example number 8, there is a seller turnover is more than 10 crores. So here also we have to see receipt only. We don't need to see buyer thing. अभी इसमें क्या है, सेलर का इसमें भी वही हो रहा है. इसमें क्या हुआ है कि रिसीट 30 जून के पहले 60 लाख ऑलरेडी हो चुकी है. ओके, एंड 30 जून के बाद में सिर्फ 20 लाख आया है. तो मेरा आंसर सही है कि नहीं? मेरा आंसर गलत भी हो सकता है. कैन यू टेल मी माय आंसर इज करेक्ट और नॉट? I am writing that on 30 lakhs to TCS will be applicable. No means right or wrong. लिख के दीजिए, please write correct or wrong. Yes. Actually 30 जो, yes, because 206 तो मेरा 1 अप्रैल से ऑलरेडी अप्लीकेबल ही है ना. तो हमें पूरा ही देखना पड़ेगा कि हमारा 60 और 20 30 जून के पहले भी हमारा 10 लाख का है और 30 जून के बाद भी 20 लाख है. तो 30 के ऊपर पूरा 206C में TCS आ जाएगा. नाउ वी विल कम टू एग्जांपल नंबर 9. In example number 9, both the seller and buyer has more than threshold limit. Turnover is more than 10 crore. So we will see before 30 June. What we will see before 30 June? Receipt or sale? We will see receipt before 30 June because seller liability is there. So वो 50 लाख ही हुई है, 50 लाख से ऊपर नहीं गई है, पूरी 50 लाख है. तो सेलर को भी कुछ नहीं TCS कलेक्ट नहीं करना. बट आफ्टर 30 जून सेल बिकम 50 lakhs. ओके, बट पहले की 40 lakhs थी, तो 14 50 90 हो गया. 90 में से 50 माइनस करेंगे तो जो 40 आया उस 40 के ऊपर भी 194C आ जाएगा. ओके, नाउ कम टू 10 नंबर. कहीं भी मैं यदि फास्ट जा रही हूँ एंड यू आर अनेबल टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव एनी क्वेश्चन, प्लीज आस्क मी. इन केस ऑफ 10 number example, 9 is not clear. Okay, in 9 both the seller liability is there and buyer liability is there. So in we have to see first before 30 June whose liability was there? Seller's liability was there. So before 30 June seller has received only 50 lakhs rupees. But how much when he has to collect TCS, it is excess of 50 lakhs and it was full get 50 lakhs. So seller liability is किस amount पे काटेगा वो? TCS किस amount पे collect करेगा? 0. ओके, बट आफ्टर 30 जून बायर की लाइबिलिटी फर्स्ट आती है. मैंने बताया ना, फर्स्ट प्रेफरेंस बायर का हो जाता है. तो आफ्टर 30 जून वी हैव टू सी सेल ऑफ गुड्स, नॉट रिसीट. व्हेन वी विल सी सेल ऑफ गुड्स, इट्स 50 lakhs आफ्टर 30 जून. ओके, जो 50 lakhs जो हो रहा है वो हमने 50 और 40 थ्रेशोल्ड के लिए हम 30 जून के पहले का कलेक्ट वो करेंगे, पर पूरा हमारा 50 lakhs होना चाहिए. तो ये 40 का जो ओवरलैप हुआ नहीं, TCS इसमें एप्लीकेबल नहीं होगा ना. क्या क्वेश्चन क्या है ये पूरा? मेरे में इसमें बहुत बड़े फॉन्ट आ रहे हैं, पता नहीं. हाँ, तू अब अनम्यूट कर तेरे को, क्योंकि पार्टिसिपेंट 75 है ना, तो कौन बोल रहा है वो समझ में नहीं आता है मेरे को, तो मैं सबको म्यूट करती हूँ. और फिर अभी तू अपने आप को अनम्यूट कर ले. अभी मैं GST इसमें इंक्लूड नहीं कर रही. whoever asking for GST, अभी GST भी इसमें इंक्लूड करूंगी ना, then you will get more complicated. You will not get to understand. Not that way. See what जो TDS काटना है, तो वो जैसे भी हम पहले भी हमारा बहुत सारे डिसीजंस भी आए हैं कि नॉट ऑन अ टैक्स, लाइक 1 lakh का बिल था फॉर एग्जाम्पल, आई एम जस्ट गिविंग इट 1 lakh and 18,000 है, तो पार्टी हैज टू कट ऑन 1 lakh दिस 0.1%, दैट इज सेटल्ड. GST you have to, in case of TCS, yes, receipt basis पे है.
देखो Okay. 50 लाख के बाद जो भी एक बिल आया, फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, थ्रेशोल्ड हैज बीन पास्ड ऑन, नाउ द बिल इज से 10 lakhs, 10 lakhs के ऊपर हम तो TCS हमने लगाया ही नहीं है, क्योंकि बायर इज गोइंग टू कट द TDS, दैट डिक्लेरेशन इज ऑल्सो विथ अस, सो दे आर गोइंग टू डिडक्ट। सो बट मेरा जो बिल जाएगा तो वो 10 लाख प्लस GST 18 जो है जाएगा, 18% चार्ज करके, तो दे हैव टू कट टैक्स एट सोर्स ओनली ऑन अ बेसिक, नॉट इंक्लूडिंग GST। वो तो क्लैरिटी है ना, मैं वही बोल रही हूँ। Yes, yes. In circular number 13 also they have cleared that in case of TDS 194Q, they have to deduct TDS on basic amount, not including GST. Okay, but in case of TCS, you have to include GST because it's on receipt basis. Whatever you will receive, you have to collect TCS on that amount. But in case of TDS, your amount will be excluding GST. But in case of advance payment, हाँ, in case of advance payment, उसमें आपको पता नहीं होता, at that time we don't know how much will be the GST amount and how much will be the bill amount. At that time you have to deduct TDS on full advance amount. Okay, पूरे advance क्यों amount से क्यों हम लोग अगर सर्विस इंडस्ट्री में, हाँ तो ये तो गुड्स वाले लोगों को ही एप्लीकेबल है ना, सर्विस इंडस्ट्री को ही सर्विस को एप्लीकेबल एप्लीकेबल ही नहीं है, ये गुड्स वालों को ही है ना। हाँ, उनको अभी एडवांस पे GST भरना नहीं है, दैट हैज बीन डन अवे विद, सो देयर विल बी लिटिल कंफ्यूजन। बट अभी एक किसी पार्टिसिपेंट ने लिखा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 and 9, लिखा है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 4 and 9, लॉजिक क्या है दोनों का, दोनों डिस्प्ले करने का? आपको 4 और 9 में डिफरेंस क्या है आपके एग्जाम्पल में? 4 नंबर का जो एग्जाम्पल है और 9 नंबर का एग्जाम्पल है, उसमें डिफरेंस क्या है? 4 और 9 में डिफरेंस क्या है? 4 और 9 में डिफरेंस ये है कि in 4 we had not received any amount after 30 June, and in 9 we had received 10 lakh rupees after 30 June. Okay. पार्टिसिपेंट का सवाल था। And we had received, जो 60 लाख दोनों में ही 60 लाख रिसीव हुआ है, बट 60 लाख इन 4th नंबर एग्जाम्पल पूरा 60 लाख 30 जून के पहले रिसीव हुआ, इन 9 वो 60 लाख में 50 पहले रिसीव हुआ है, 10 लाख बाद में रिसीव हुआ है। तो इसीलिए जानबूझ के मैंने ये एग्जाम्पल लिया कि पता चले कि यदि 30 जून के पहले ले लिया होता तो क्या सिचुएशन थी, और 30 जून के बाद में थोड़ा अमाउंट आया तो क्या सिचुएशन होती है। ठीक है मैम, मेरे को अभी हेलो, एम आई ऑडिबल? यस 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 यस। हाँ मैम, मेरे को 9 नंबर में इसलिए समझ में नहीं आया बिकॉज आई वाज गोइंग विद 4th नंबर का लॉजिक ओनली, कि जहाँ पे हमने 90 लाख सेलर का 90 लाख का सेल हुआ है और रिसीट उसका 60 हुआ है, तो हमने जैसे ये 40 माइनस 10 तो हम 30 लेकर आए। मैं वही लॉजिक से 9 को समझने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे भी 90 lakhs है और 60 lakhs है, तो उसी हिसाब से मैं 30 मतलब मेरे हिसाब से आंसर आना चाहिए था। जो 40 है इसके लिए मैं थोड़ी कंफ्यूज हो गई, नहीं समझ में आया मुझे। इसे समझाओ। हाँ, You explain again how the logic works. इसमें क्या हुआ है, पहले जब 4th नंबर में you have seller has collected 60 lakhs before 30 June and we have to minus threshold of rupees 50 lakhs. बराबर। Okay. On that 10 lakh TCS liability arrived. But in 9 number he received only 50 lakhs before 30 June. 50 में से 50 माइनस करेंगे तो TCS कहाँ आएगा? नहीं आएगा ना। बराबर नहीं आएगा। हाँ, तो इसके लिए उसको TCS नहीं आया उसमें। एंड फिर उसके बाद में बायर का, जैसे मैंने बताया ना, बायर का फर्स्ट प्रेफरेंस हो जाता है TDS काटने का। हाँ, अच्छा, तो इसके लिए हम ये 50 में से जो सेल आफ्टर गुड है वो 50 lakhs है, तो 50 lakhs माइनस 10 lakhs रिसीट आफ्टर सेल है, वो माइनस करके हम 40 ला रहे हैं। यस, करेक्ट ना? यस। अभी जो 4th नंबर में भी No. I differ. I calculated how 50 plus 40 का sales total sales. 50 plus 40 का सेल माइनस 50 थ्रेशोल्ड लिमिट। हाँ, so logic was different. हाँ, that's what. Yes, yes. Total 90 lakhs का सेल हुआ और उसमें से 50 थ्रेशोल्ड था, उसने गलत, मतलब उनका इंटरप्रिटेशन अलग था, वो उनको क्लियरिफाई करो।
एक्चुअली मैं दूसरा क्वेश्चन बीच में हाँ, पढ़ने it's okay, but I was attentive, क्योंकि तुमने वहाँ पे मुझे बराबर क्लियर बताया था कि when 194Q is that I have to add all sales and threshold 50 lakhs to be minus. Simple as that. तो यहाँ पे मैम अगेन मैं 90 lakhs में मेरा टर्नओवर जो है मतलब सेल मेरा जो 90 lakhs है उसमें से मैंने 50 lakhs थ्रेशोल्ड माइनस किया तो आई एम गेटिंग 40 यस और 40 में से सो दैट इज इट क्योंकि ये 10 को मुझे काउंट नहीं करना है जो रिसीव है because on 10 nobody collected TCS na. In fourth number example already TCS has been collected on 10 lakhs. That's why it has been deducted from that 40 lakhs. But in this 9 number case nobody has collected TCS before that. ओके ठीक है तो फिर ओके समझ गए ठीक है थैंक यू Yes. In 10 number again liability of seller and buyer both are there because turnover is more than 10 crores. Now first हम लोग वैसे ही देख रहे हैं but in this case before 30 June amount is only 20 lakhs. He has received only 20 lakhs. So there will be no any TCS. But after 30 June sale is 30 lakhs. So it become 1 crore. Sale become 1 crore because before 30 June it is 70 lakhs. Got my point? So how you will why 30 lakhs will be TDS will be deducted on 30 lakhs? Can anybody tell me? Because sale becomes 70 lakh plus 30 lakhs, sale become 1 crore and threshold limit is 50 lakhs. So why it is not TDS is not on 50 lakhs? Why TDS is only on 30 lakhs? Can anybody tell me? I think we have to see the 1st July के बाद कितना सेल हुआ है exceeding the threshold also. ऐसा मेरा मानना है. हाँ, That can be the logic. That's why I taken this example कि threshold का वो 50 lakhs calculate करने के लिए we have to calculate from sale from 1st April. Okay, but 194Q will be applicable on the amount on the transaction after 30 June. Okay, although it become 1 भी वो crore. पहले सेल लास्ट क्वार्टर में चला गया तो उसपे कहाँ काटते बैठेंगे? That is out of question. Yes. Another thing why people has a problem, I now realize after the whole discussion that people have charged TCS on the bill itself, which is wrong. The way you said it should be on a receipt basis, this complication would have been mitigated. Correct. वही मैं बोल रही हूँ वो लोग इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं क्योंकि वो बिल में लगा के दे रहे हैं ना TCS, इसके लिए कंफ्यूज हो रहे हैं. बट लॉ के हिसाब से एक्ट के हिसाब से आपको रिसीट बेसिस पे लेना है तो रिसीट बेसिस पे लोगे तो ये कंफ्यूजन ही नहीं आएगा ना. नाउ टू 11 नंबर से एग्जांपल. सेल तो कुछ भी नहीं हुई, जो भी रिसीव हुआ है पिछले सालों का रिसीव हुआ है. ओके, in this case seller liability is also there, buyer liability is also there because turnover is more than 10 crore, but there is no sale, zero sale. All whatever he received for previous years sale. Okay, so although there is a liability of buyer but there is no sale, so 194Q का क्वेश्चन ही नहीं आएगा. जो भी है TCS ही होगा. And on what amount? 60 plus 20, 80 minus 50, 30. Correct? Now come to 12. So that also gives an idea to me while looking at this कि हर साल का थ्रेशोल्ड अलग है, मतलब हर साल इंडिपेंडेंट थ्रेशोल्ड चेक करना है आपको. Hence the confusion of how to claim refund. क्या लिखा है? Actually they are charging on bill. Hence the confusion of how. Yes, that's true. That's why I am asking everyone why you are charging on bill. वो डेबिट नोट में TCS लगना चाहिए, डेबिट नोट बनना चाहिए TCS का. अब ये 12 नंबर एग्जांपल है ना, दिस इज वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड. उसके सबके अलग अलग आंसर आ सकते हैं. सिखाया था तो मुझे इमीडिएट समझा कि 65 में से 50 निकल के पॉइंट 15 पे लगेगा 22.61H. उतना तो इमीडिएट समझ गया फर्स्ट रीडिंग में मेरे को. और उसके बाद हमें देखना है कि सेल कितना किया है 0.30, तो 30 पे ही लगेगा 194Q. आगे का तो देखना ही नहीं है. बट इसमें देखने जाओगे ना
एक तरह से देखो सेल अपनी 1 करोड़ की हो गई, फिर भी 1 the करोड़ हो गई, logic 1 करोड़ remains में तो ना। 50 माइनस करोगे हम्म, तो TDS either TDS or TCS should be on 50 lakhs. गवर्नमेंट को नुकसान है इन दिस सिनेरियो बस। 45 लाख पे TCS या TDS हो रहा है, करेक्ट 5 लाख का उसमें वो प्रॉब्लम आ रही है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और मैं इसमें खुद कंफ्यूज हूँ कि 5 लाख का कैसे होगा वो। ये सब प्रैक्टिकली फेस होने वाला है, बहुत रिकंसिलिएशन करना पड़ेगा। और इसीलिए मैं बोली ट्रांजैक्शन टू ट्रांजैक्शन, केस टू केस बेसिस पे एक ट्रांजैक्शन का यू हैव टू चेक, और योर अकाउंट, इफ यू आर अकाउंटेंट यू हैव टू चेक, अदरवाइज योर क्लाइंट अकाउंटेंट टू चेक। क्या हम ये चाय पे चर्चा आगे रखनी पड़ेगी? टाइम हैज ऑलरेडी शूट अप, यू नो, सो इंटरेस्टिंग इट वाज, राइट? Hello, Mary. Yeah, in the last case, the 0.70 and 0.65, they're 5. On a 5 lakhs, there is no deduction of either 206 or 20 or 194Q, right? Which one you are asking? Which example? The last example. बार number. In the last example, the seller is paying on the 15 lakhs, right? Yes. Though he's not paying on a 70 lakhs, and the buyer is getting exemption. Because on receipt, because on receipt basis he has to pay, na? Yeah, but ultimately at the end of the year, he's getting a 45 lakhs more, right? Yes. On that, the buyer has paid only 30 lakhs. Yes. Though on 50 lakhs, his seller is not paid. Takes No. ideally. Yes, that's why I'm saying you can get more examples and more scenario. Whatever come to my mind, I make accordingly. But Yeah. you can get different scenario or different example also. There is probability of 5 lakhs maybe disallowances in the buyer hand if he's not deducting on a 5 lakhs, I think. No. Why in buyer? Buyer is deducting 30 lakhs. Buyer is not required No. to do it from the earlier differences, right? Yeah, buyer liability is only on 30 lakhs, na? Because his liability arises after 1st July. The only problem from the seller point of view. He has deducted TDS. Only from point of view of the sellers, the 5 lakhs difference will come. Yeah, but it's not liability of seller also, because seller has paid the 15 lakhs before the is due on whatever he received. Yeah, but then after that he say again your purchase is less than the receipt amount. अभी इसमें क्या है ना, you see sale is only 1 crore, but Yeah. he has received 1 crore 10 lakhs. Okay, so that 10 lakhs can be of previous year or can be of advances for future year. Yeah, but that is not but the TDS or TCS has not be deducted on that, right? So that's why I'm saying you have to see the transaction, whether this is pertaining, what the 10 lakhs he received more than sale, whether it is pertaining to previous years or it is advance. Yeah, okay. There is no answer for that actually. What is this? What would be a disallowance if the seller lesser deduction of the TCS by the sellers? There is no like purchase. If you don't deduct TDS, there is a disallowance of purchase. Yeah. For seller only liability of interest, right? Anything Yes. else other than this for the seller point of view? No, seller has to pay only simple interest at the rate of 1% or 1.5%. Yeah. Okay. But in case of buyer, the expenses will be disallowed, because in case of seller, it is Yeah. not expenses, it's sale, not expenses. Okay. So I hope participants will agree. It was a very interesting discussion is going on, and 1 hour is actually not sufficient. We have already reached to 5:15. So how there are some questions. We will continue with this. बोलते ना, the next episode follows. So when Pinky you have a next episode time, we can lock you. Tuesday, Thursday, Wednesday जैसे करना है, क्योंकि ये अभी सबका next agenda is also lined up. That's why I am requesting you, because यहाँ तक कि 3 स्लाइड हमें समझ में आ गई है. Will request you कि अगर ये आप कल 5 बजे अगर करना चाहेंगे कैरी फॉरवर्ड, जैसे बोलता है ना कैरी फॉरवर्ड, कल आपको कल नहीं जमता है तो अगर हम मंडे ट्यूसडे, आपको कौन सा टाइम सुटेबल है? To be continued, वंदना, to be continued. नो अभी मुझे कहीं जाना है. आई हैव सम लाइंड अप मीटिंग्स. अरे ऐसे नहीं, जो कैरी फॉरवर्ड बोल रही है ना, उसके लिए मैं बोल रही हूँ, to be हाँ continued. बेटा, टू बी कंटिन्यूड. आई एम सो सॉरी. थैंक यू वेरी मच फॉर करेक्टिंग शेफाली.
So- can continue on Monday. Monday, I'm okay with it around this time 5 o'clock. Monday 5. कोई थोड़ा सा अपॉइंटमेंट है क्या पोल ले आपका? लेना चाहिए मेरे ख्याल से, वो चैट बॉक्स में पोल ले लेना कितने बजे सबको कंफर्टेबल है. Please tell your time. Excuse me, Pinky ma'am. Yes. Yeah, tell me. Is it applicable 2061H is applicable to high six still also? ISIS sale? No. No, means if sailor is doing high seas, then it is not applicable 2061H. See, what the section is saying. First, you have to see that what buyer is a resident or seller is resident or non-resident. You have to check that. Okay, means a buyer is resident only, means party is located in Hyderabad. To whom Buyer is for 261H you are asking, or for 194Q you are asking. the 206. For example, I am a sailor Yes. and So you seller are is buyer, you are resident or non-resident? resident. Seller is resident. Okay. Seller is a resident, yeah. Okay. And buyer is located in Hyderabad. Okay. And if he is So importing, both are resident. Both are yeah, resident. both are resident. Okay. Then it will be applicable. Then it will be applicable. Okay, madam. Thank you. You have for this now, for these two sections you have to मैंने पोल लॉन्च किया था, just दिख one रहा है क्या? second. Just one second. हाँ. For these two sections you have to check only residency of buyer and seller. These two sections. Okay, madam. Thank you. Okay. मैंने पोल लॉन्च कर दिया, फटाफट जवाब दे दो तो पता चले. मैक्सिमम जो रहेगा उस टाइम पे अपन ले लेंगे. मैंने 2 ऑप्शन दिया था, मंडे ट्यूसडे 4 PM 5 PM. मेरा खुद का सेशन है 6 तारीख को, शायद 6 बजे है. ठीक है. So 94% are of the opinion of Monday because answer हमें चाहिए ही चाहिए. And 71% thinks 5 PM is the ideal time. So we will end polling and we will continue the session. The next episode, Chai Pe Charcha with Pinky Kedia on section 194Q 2061H will Episode two. continue. Episode number 2. Episode 2 will be on Monday 5 PM.